A very warm good morning, everyone. I, Dipali, the President of Kartav, on the behalf of entire society, would like to welcome you all for the session, Aspirants to Administrators, a journey to explore. I would like to inform you all that meeting is recorded, so kindly maintain the decorum. And now I would like to hand over the stage to the moderators of our session, Rajshri Pathak and Vinki Upadhyay. So let's start the session. हौसला क्या है, जज्बा क्या है, हमने दिखाया कहाँ है। हमें क्या क्या है हुनर बाकी, जमाने को बताया कहाँ है। हम वो आग रखते हैं कि सितारों को भी जगमगा दें, रुख से अभी अपना हटाया कहाँ है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विंकी उपाध्याय आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मैं अपनी सोसाइटी कर्तव्य अथवा किरोड़ीमल कॉलेज की तरफ से हमारे अतिथियों का अभिवादन करना चाहूंगी, जिनकी उपस्थिति से आज का यह कार्यक्रम संभव हो पाया है और अनेक एस्पिरेंट्स को सीखने का इतना Warm greetings, everyone. I'm Rajeshri Pathak, a volunteer at Kartavya, the Civil Services Society of Kiroimal College. I extend my heartiest welcome to everybody who is present here and have made our event a huge success. I would like to inform our audience that today we have been graced by the presence of UPSC CSC 2021 toppers, Mr. Utkarsh Dwivedi and Ms. Diksha Joshi. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for marking your presence today. Kartav is an initiative of Kirodimal College that has always strived to provide a platform and a collaborative learning experience for the civil services aspirants and all the students across the college to aid them in their preparation for one of the most prestigious examinations in the country and is emblematic of our principle, Spirit D Corps. अब मैं चाहूंगी कि मेरी आज की को-होस्ट राजश्री आज के हमारे सुसम्मानित अतिथियों का परिचय करें और इवेंट को आगे बढ़ाएं। Over to you, Rajshri. Thank you, Vinti. I'm profusely elated to take this wonderful opportunity to introduce our honorable guest today, Mr. Utkarsh Dwivedi, who secured an All India rank 5, and Ms. Diksha Joshi, who secured an All India rank 19 in the coveted UPSC CSC 2021. On behalf of the entire team, I thank both of them for joining us today for sharing their knowledge and experience with our audience. Mr. Utkarsh Dwivedi, who hails from Ayodhya, Uttar Pradesh, has done his graduation in mechanical engineering from the Vellore Institute of Technology. उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अपने ग्रेजुएशन डेज में ही शुरू कर दी थी और इंटरव्यू के लिए वो 2019 और 2020 के एग्जामिनेशन में 2 बार अपीयर हुए थे एंड इट इज फाइनली इन हिज थर्ड अटेम्प्ट that he clears this prestigious exam with an extraordinary success by bagging All India rank 5. So you are indeed an inspiration for all of us.
I would also take immense pleasure in introducing Ms. Diksha Joshi, who belongs to Pithoragarh district of Uttarakhand. Being a bright student from her childhood, she has been excellent in academics, and that is quite evident from her education records as well. उन्होंने अपनी MBBS डिग्री उत्तराखंड के देहरादून स्थित Himalayan Institute of Medical Sciences से कंप्लीट की है. It was during her internship at Doon Medical College that she decided to appear for the UPSC CSE. And in her third attempt, she finally bagged All India rank 90 and made everyone proud. Thank you, Rajshri. Before moving ahead with the session, मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि आज का हमारा इवेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के माध्यम से आगे बढ़ेगा. इसीलिए आप सभी को जो भी सवाल हैं हमारे गेस्ट से उन्हें लाइव चैट बॉक्स में डाल दीजिए. And I would also like to mention certain guidelines for this session. Number one, kindly remain on mute throughout the session to maintain the decorum and unmute only when asked to do so. Number two, please don't use any derogatory language. Number three, kindly write your questions in the chat box and we will try to take maximum of it from the guest speakers. Last but not the least, try turning on your cameras to make this session more interesting. Now I would like to call upon Vinti to begin with the question and answer round. Over to you, Vinti. Thank you, Rajshri. I would like to start the question and answer round by asking one of the most frequently asked questions to both of you, which is, what qualities make an aspirant to an administrator? Which things should be prepared before joining coaching or starting preparation? Sir, ma'am, please go ahead. So answering your first question, I think the most important thing for before you enter into the civil services is to have a strong motivation as to why do you want to come to this service, because the exam, however prestigious it is, the service in itself is a bigger responsibility in itself. So the most important thing is that, I think apart from that, most generic qualities that every individual should have, whatever field you opt for in life, which would include your hard work, your consistency to work hard, and also perseverance, because sometimes this exam, the process in itself becomes a little longer. For example, like for me, it took 3 attempts. So to have that patience for all these years when you are working, I think these are certain qualities that one should inculcate in life in general, not only for this exam, I would say. So what is your view regarding this? Thank you, ma'am, for answering this question. So what is your view? Hi, good afternoon, everyone. Yes, am I audible? Yes, you are. So, hi, thank you for having me. Because ऐसे तो पिरोडिमल में एडमिशन मिलता नहीं, क्योंकि इतने तो परसेंट थे नहीं 12th में, लेकिन यूपीएससी के ही थ्रू आप लोगों से इंटरेक्ट करने का सौभाग्य मिला है. तो द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव आस्क्ड इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन,
And I think Diksha has hit the nail rightfully. बट एक आध चीज बस मैं वही ऐड करूंगा कि पहले आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये एक बैटल फील्ड में जब आप घुस रहे हैं तो वो किसके अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं, हु इज योर एनिमी। तो आप उसके बारे में सब कुछ जानिए। जैसे इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ इट वाज मेंशन्ड कि मैंने ग्रेजुएशन डेज में थोड़ा बहुत शुरू की थी तैयारी को। तो मैंने तब एक आध साल तो सिर्फ रिसर्च किया था इस एग्जाम को लेके कि क्या है, इतने सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे कि प्रीलिम्स के लिए कैसे करना है, मेंस के लिए कैसे, या इंटरव्यू के लिए कैसे, कौन से रिसोर्सेज पढ़ने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसको अच्छे से थोड़ा रिसर्च आप करिए, ठीक है। यू शुड हैव अ गुड स्ट्रैटेजी बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सेकेंडली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल जो मुझे लगता है लाइफ में और इस एग्जाम में जरूरत है, वो है पेशेंस की। बिकॉज जैसे दीक्षा ने भी बताया, और मेरा भी ये थर्ड अटेम्प्ट था, तो थर्ड अटेम्प्ट मतलब 3 से 4 साल की प्रिपरेशन। तो इस केस में क्या होता है कि कई बार आपको असफलताएं भी हाथ लगेंगी। तो उस समय इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट लूज योर ग्राउंड एंड स्टैंड अप टू द चैलेंज, और फिर से आप खड़े हों उस मैदान में। तो ये 2-3 चीजें, पेशेंस और परसिवियरेंस और एक स्पिरिट टू फाइट, बिलीफ इन योरसेल्फ, ये सब बड़े जेनरिक टर्म्स लगते हैं, बट आई थिंक लाइफ में ये बड़े जरूरी होते हैं किसी भी जंग को जीतने के लिए। Thank you so much, sir, for your answer. Now, yeah, indeed, patience, perseverance, hard work, positive mindset, indeed, some that are necessary for them. My next question is to Diksha ma'am. This is one of those questions that we received through the Google form that we circulated. So the question is, having a science background, was it difficult for you to prepare for the arts subject? And what was your strategy for the prelims examination? Oh. I did not know even the basic things as to how many members are there in the parliament, or what exactly are the powers of the president, minister, what are fundamental rights, which I think every citizen should be aware of, but I was not knowing all of those things at that point of time. So yes, it was a challenge in the beginning, but gradually, I think what is most important is to consistently read something. In the beginning, there will be days you will not understand. For me, I 4 months to finish Lakshmikant at that point of time. It was also because I was doing it with my internship. So the time management was another issue. But anybody who comes from a science background and is facing challenges, what I think most appropriate is to keep reading your text, because the subjects in UPSC syllabus are not such that you will read it once and you will understand. You will have to read it again and again. Maybe, and I cannot specify a number. I think it is endless till the time you see your name in the final list. And all of us have done that, be it me, be it Utkarsh or somebody else. We have read it endless times. So that will be the case for everyone. So do not be afraid to start. Just start wherever you are, at whatever position you are. It might take a little bit of time, but it won't be a challenge. As far as the strategy for prelims goes, I think if I can describe it in brief, what is important is to first choose right kind of resources for yourself for the preparation that you can do. If you have some senior who is guiding you, you can refer to that a particular person. In today's day and time, I think n number of videos are available on YouTube. You can find all of the right resources mentioned by previous toppers on the Google search also. So first of all, choose right resources for yourself, because that was one of the mistakes that I did in my first 2 attempts, is to refer to unnecessary coaching material or something that is not the demand of the exam. So first would be that. Second is to also limit your resources when you are preparing for prelims. To only revise them multiple times, not to have 10 books for one subject, but to have one book and to revise it as many times as possible to precisely mark the answer in the exam. That would be another strategy. I think the third thing for prelims is whatever you are doing, especially your mock papers that you attempt, please keep analyzing those papers. There has to be nothing that has to be mindless, because in this exam, it is not only about just hard work that you will do. You will have to be smart at certain point of time. So when you're attempting a paper, you will have to analyze as to where are you getting particular questions wrong from, what are your strong subjects, what are your weak subjects. And if a particular subject is weak,
then how can you make it strong? So that analysis part has to be there throughout your preparation. One most important thing, I think for a lot of students, it will make sense now, is to not ignore CSAT, especially for your prelims paper. And the last of all, I know it is very early to say it right now, but also to have a right mindset on the day of the exam when you are going, because sometimes too much of anxiety, too much of taking too much pressure on yourself also becomes counterproductive. You tend to mark wrong bubbles. You are not calm enough to make a logical guess. So I think all of these factors combined would help to streamline your prelims preparation and also help you clear the cutoff in the exam. Don't afraid to start just from where you are. Seriously, one of my greatest takeaways from this session is going to be this. Thank you, ma'am. Now, my next question to both of you would be, are school achievements and positions of responsibility matter here in UPSC? Also, how much of an impact does internships leave? Are they very important? Diksha, would you like to go first? Okay. I think, see, in school, probably, yes, I was a little active in a lot of co-curricular activities. But once I went into college, because the study in itself was so rigorous, I did not get enough to participate in a lot of other activities at that point of time. And also, I think I prioritized my academic part more compared to other things. So I did not participate enough. And I think it does not really matter what number of achievements you have, because we have had people from different backgrounds coming in the exam. If I can give my personal example, for example, in the sports section, I did not have any achievement there. So I actually left it blank. So what the exam or the UPSC demands in itself is to be honest with whatever you have. And that honesty and integrity, which is the sole foundation of civil services, I think that should reflect in every stage. So it does not really matter how many achievements you have, but being confident about whatever you are is the most important thing. This was a slightly tough question for me because मेरा भी ऐसे कोई achievement है नहीं, and I left my sports section blank and leadership वाला section blank. और achievement में भी there was nothing to show. और मुझे पता था कि because graduation से ही तैयारी थी, तो I knew कि कुछ तो लिखना ही होगा achievement section में. तो final year में I had published a research paper, खाली इसलिए कि मैं achievement में कुछ लिख पाऊँ. But उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा. But the other side of the coin is कि in all my 3 interviews I have only scored average around 160-165. तो मे बी उस दिन का परफॉर्मेंस मैंने इतना अच्छा नहीं दिया था, या शायद मेरा डाफ उनको इतना मल्टी डायमेंशनल नहीं लगा कि वो अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन पूछ सकें. तो आई वुड अग्री कि देखिए आप कॉलेज में हैं, ठीक है, किरोड़ीमल एक अच्छा कॉलेज है जहाँ पे बहुत सारे एवेन्यूज हैं, डिफरेंट क्लब्स एंड चैप्टर्स हैं. तो जहाँ आपका इंटरेस्ट हो आप उसको जरूर परस्यू करिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू समवेयर इन द इंटरव्यू और इन योर डाफ. और देखिए फाइनली क्या होता है कि बिकॉज इस एग्जाम में पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड 4th attempt, 5th attempt, 6th attempt, they are clearing it. और इंटरव्यू का इतना भी वेटेज नहीं है, ठीक है, दी सिलेक्शन इज थ्रू मेंस. तो उस चीज को इतना भी तवज्जो आप ना दें. यू परस्यू दीज थिंग्स बिकॉज यू लाइक टू डू देम, बिकॉज इट क्रिएट्स अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, अ फन एक्टिविटी फॉर यू. तो उसको उस मोटिव से करिए. और आई थिंक बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आई डोंट थिंक इसका पड़ना चाहिए. Yeah, exactly. Thank you, sir, and thank you, ma'am, for answering this question. We have received numerous questions in the chat box, and among them, we have received one question, and I would like to ask Utkarsh to answer this question. How to prepare for the essay writing as the paper is designed that a person cannot skip philosophical or ethics topic? See, you have asked this question to the wrong person, because since last 2 attempts I have not been scoring very good in essay. Last year I had scored 103 and this time it was 111. So still I would only give 2 bits. पहला कि कुछ toppers हैं last year के, whom I referred to, Radhika Gupta ma'am and T Pratik Rao sir. Both had scored 140 plus in their essays, तो उनकी strategy जरूर पढ़नी चाहिए. Secondly, since you cannot skip the ethics essays, अभी से practice करिए. और अब जो ऐसे का पैटर्न होता जा रहा है, आप इस बार के 2021 के आप ऐसे के टॉपिक्स को उठाइए, मतलब पैरों तले जमीन ही खिसक गई उस समय टॉपिक्स को देख के कि यार लिखना क्या है इसमें.
तो अब उन ऑब्सक्योर टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने की है कि आप तैयारी करिए, एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओरिजिनल इन एसेज। तो आप दोनों जो एसेज लिख रहे हैं, मेक श्योर दोनों का टेम्पलेट सेम नहीं होना चाहिए। मेक श्योर यू डोंट फॉलो दी ट्रेडिशनल टेम्पलेट ऑफ बस खाली डायमेंशन खोल दिया और खूब सारे एग्जाम्पल डाल दिया, बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। आपके एसेज अब थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव होने चाहिए। जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में, तो बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। यू टेक अ क्वेश्चन, देन यू आंसर देन यू टेक अनदर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, फाइनली यू समराइज योर एसे, और फिर अगर आप उसको एक पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ टेम्पलेट हो सकता है। और इस बार भी जिन लोगों के ऐसे में अच्छे नंबर आए हों, उनकी कॉपीज को आप जरूर पढ़िए। नॉट मेरी तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, और बाकी आगे दीक्षा बताएगी। I think for philosophical essays, I would just want to add my bit here is that थोड़ा सा उनको ना जितना objective हो सके उतना बनाने की कोशिश करें, especially for people who do not read a lot. See, for people जो लोग काफी ज्यादा पढ़ते हैं उनको issue नहीं आता है because they have a lot of material with them. But especially people from science background जिनका, like for me, I did not have a lot of reading habit, so quoting a lot of people became a challenge. तो जो भी आपका GS का मटीरियल है, चाहे आप IR में पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, यू जस्ट हैव टू यूज ऑल ऑफ दैट व्हाट एवर लिमिटेड नॉलेज यू हैव. सो ट्राई एंड बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल. उसको फॉर एग्जाम्पल इस बार जो क्वेश्चन था ऑफ हाउ बेटर बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी मेड बेटर, सो उसमें एक सिंपल ऑब्जेक्टिव तरीके से आप अगर डायमेंशंस में सोचे, समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ COVID lockdown was considered as a best practice at that time, but a better practice could have been we made some bio bubbles जहाँ पे mental health का issue target हो सकता था, or something like पंचायती राज में we think we have given women enough position now, but again the concept of sarpanch pati still exists. So all of these ये ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत नया मैंने पढ़ा कुछ specifically इसके लिए, जो भी पढ़ा था बस उसको use करना है in a right manner. And a little bit of brainstorming that you do, all of this will come with practice. So my advice would be, क्योंकि especially here you have students जो इस session का part हैं, so at least practice 10 to 15 essays depending कि आपका caliber कितना अच्छा है in the writing before you go for the actual exam. It should not happen कि just because essay है कुछ भी लिख लेंगे, that you go and do it first time or the second time there, वो थोड़ा सा counterproductive हो सकता है. Practice a few essays and take feedback on those essays from the right kind of people. I think वो दो चीजें अगर आप करेंगे तो it will help. Surely that was very enlightening, sir and ma'am. Now let's move ahead with our next question asked by Muskan Fatima. Several topics have overlap in GS papers and PSIR, and we would be referring some similar resources for both, like Lakshmikant, for a number of resources. So should I start by preparing GS first or PSIR? Which would be better? I think you cannot look at it in silos because both are integrated. See, a strategy should be to integrate yet differentiate. This was something I followed for my prelims, mains, as well as for my optional. So I used to make digital notes on Evernote, but मेरे कोई भी अगर एक टॉपिक होगा, तो बिकॉज आपका अप्रोच तीनों एग्जाम्स में तीनों स्टेजेस में अलग होता है, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो पॉइंट्स होंगे वो तीनों के लिए अलग होंगे. सपोज कोई गवर्नर पे क्वेश्चन है, तो अगर आप मेंस के लिए उसके लिए कर रहे हैं, जैसे जीएस के लिए पॉलिटी के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होंगी या कुछ कमेटी का रिकमेंडेशन होगा. लेकिन जब आप पॉलिटिकल साइंस में आ जाएंगे तो उसमें कुछ स्कॉलर्स भी होंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत उसको डिफरेंशिएट तो आप करिए ही करिए. तो मैं बोलूंगा कि आप इसको एक साथ इंटीग्रेट करके चलिए. आप ये मत सोचिए कि पहले जीएस करें या पहले पीएसआईआर करें, बिकॉज दोनों का स्पिल ओवर एक दूसरे पे होगा. लेकिन आप अपनी स्मार्टनेस तो यहाँ पे ये रखिए कि जब आप जीएस के पेपर को लिखें, GS2 को पर्टिकुलरली, बिकॉज दोनों बार GS2 में मेरे ठीक ठाक नंबर रहे हैं, तो ये मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जीएस के पेपर्स में कहीं भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं. आपका कोई स्कॉलर वहां पे ऐसे आना नहीं चाहिए, या कोई आप ऐसे लैंग्वेज या कोई ऐसे की टर्म मत यूज करिए जिससे ये लगे कि आप पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं. आप इसको जीएस के तरीके से ही लिखें. उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स होना चाहिए, सिंपल डेफिनेशंस होनी चाहिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होनी चाहिए, और कुछ उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो सकते हैं. तो आई थिंक उसको सिंप्लीफाई रखिए, और पॉलिटिकल साइंस में आप थोड़े से स्कॉलर्स को ऐड करके, थोड़े से की टर्म्स को ऐड करके आप उन्हें एनरिच कर सकते हैं. Ma'am, you can also answer this question. Oh,
I don't think I have the expertise to answer because I have never read PSIR as a subject. I think Utkarsh has very rightly described whatever is appropriate for this topic. Ma'am, we have another question from Kamal Joshi in the chat box. That how to choose optional? One of the most common questions that the UPSC toppers get. So I think to choose an optional subject, first, most important criteria would be to have an interest in the subject. It could be your graduation subject, if as was the case with me. I know in India, one of the issues is most of us do not choose our graduation subject because of interest. Sometimes we are forced to choose that subject because probably we do not find admission in a college or parental pressure, etc. So if that is the case, then you can always explore new dimensions and look for the other subjects that UPSC offers. Now, when you're looking at that, तो उसमें important है ये देखना one कितना resource और material market में available है and how easily is that available. कुछ optional subjects ऐसे हैं जिनके लिए you can easily find guidance in terms of material, in terms of classes, in terms of test series. तो वो अवेलेबिलिटी कितना इजीली है उसको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना है, स्पेशली इफ इट इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, बिकॉज थोड़ा सा चैलेंज होगा वहां पे. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक सेम स्ट्रैटेजी जो आप बाकी चीजों के लिए फॉलो करते हैं टू कंसिस्टेंटली वर्क टूवर्ड्स दैट सब्जेक्ट वंस यू हैव चोजन योर रिसोर्सेज, और बार बार हर छोटी छोटी बात पे अपने रिसोर्सेज को चेंज करना या डिविएट नहीं करना. आई थिंक दीज आर द फंडामेंटल पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, our next question is from Ayushi. How can a balance be created between the preparation of optional and GS subjects? See, this is a very important question. But आप एक चीज को ये देखिए कि पहले क्या होता था कि there was this traditional strategy of essay, optional and ethics to ace in this examination. But मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक दो साल से this is not working because ऐसे बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है और ऑप्शनल में अब स्कोर नहीं आ रहा है. you see the toppers are 280 290 पे लोग निपट गए हैं. तो यहाँ पे GS 1 2 3 4 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और अब आई वुड से कहीं ना कहीं एक 60-40 का रेशियो आपको बना के चलना पड़ेगा, जहाँ पे 60% आप अपने ऑप्शनल को देंगे, बिकॉज इट इज मेक और ब्रेक. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे ऑप्शनल ने ही ब्रेक किया था और इस बार ऑप्शनल की वजह से ही मेरी रैंक आई है. तो आप 60% उसको टाइम दीजिए. जैसे PSI वगैरह जो ऑप्शनल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, या मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स कई बार बहुत बड़े ऑप्शनल्स होते हैं वो, तो दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम. और वहाँ पे आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं. पर पेपर आप 150-160 तक लेके जा सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल इन GS. लेकिन ऑन दी अदर हैंड आज के टाइम में GS में टू गेट अ गुड रैंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 430 या 440 के स्कोर को एटलीस्ट टच करें, तब आप जाके कहीं टॉप 50 या टॉप 100 में आपका नाम आप देख पाएंगे. बिकॉज ऐसे इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि कई बार आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है और उसमें नंबर नहीं आता है, एंड वाइस वर्सा. एंड इंटरव्यू का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं होता है. तो GS और यही आपके हाथ में बच जाते हैं ऑप्शनल. तो आप इसको 60-40 के रेशियो में डिवाइड करिए, और दोनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुड बी योर लाइट हाउस फॉर ऑप्शनल एज वेल एज फॉर GS, बिकॉज रिपीटेशन काफी है मेंस में. तो आप अगर आपके लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड हैं GS को लेके और ऑप्शनल को लेके, देन यू आर गुड टू गो. और दूसरी चीज ये है कि आप जब उन क्वेश्चंस को देखें तो आप देखिए कि उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर पा रहे हैं, डू यू हैव द मटेरियल और नॉट. और नहीं है तो उसको आप उस मटेरियल को ऑनलाइन अच्छे से सर्च करिए, अपने नोट्स बनाइए, और नोट्स को शॉर्ट करने का, कंसोलिडेट करने का एक नेवर एंडिंग प्रोसेस जब तक आपका नाम लिस्ट में नहीं आ जाता है. तो आई थिंक दिस इज शुड बी द अप्रोच मेरे हिसाब से. आई थिंक ऑल्सो जो ये सब बोला है इसमें जस्ट एडिंग अ लिटिल मोर दैट ऑप्शनल जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं अलॉन्ग विथ योर GS, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि प्रीलिम से पहले एटलीस्ट आप सारा सिलेबस कवर कर लें. यू डू नॉट लीव एनीथिंग फॉर बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि फॉर पीपल हु आर राइटिंग मेंस वुड अंडरस्टैंड, या जिसने पहले कभी लिखा है, कि वो टाइम पीरियड इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी हेक्टिक. जितना प्रेशर प्रीलिम्स के लिए नहीं आता है, बिकॉज प्रीलिम्स में 1 साल का प्रिपरेशन टाइम पीरियड होता है, बट वो दो 60-90 डेज उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. समटाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, यू आर ओनली स्टडिंग. तो एटलीस्ट अगर आप अपने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करके रखेंगे, एज उत्कर्ष ऑल्सो सेड कि लास्ट 5 ईयर पेपर्स के आंसर्स आपके रेडी हैं, तो उसी तरीके से ऑप्शनल में भी जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर्ड हैं. इवन फॉर GS आई थिंक यू शुड एटलीस्ट हैव योर नोट्स एंड मटेरियल्स रेडी. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं. तो
Yes, exactly. Maintaining a ratio between GS and optional at 60:40, and then referring to the PYQs, gaining some referring to different reading material. Yeah, and these are the key strategies of maintaining a good balance between the GS and optional papers. Sir and ma'am, we have another question from Shubhangshu. How to get rid of from the dilemma that the answer which I have prepared is as effective that I can refer to this in the exam or not, particularly for optional. That's this question, and I would like to ask both of you to answer this question. Oh. See, if I talk about optional, I think in my paper, because the paper is very, very technical and objective. So if the paper is such, I think वहाँ पे तो काफी ज़्यादा reliability होती है, because you have one answer for a particular question, ज़्यादा change करने का scope नहीं होता है. So if you have prepared those kind of questions जिनका एक objective answer है, तो वो definitely आप उसको before the exam आप उन previous year questions को भी revise कर सकते हैं, especially a day before the exam या फिर between paper 1 and 2 जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या revise करें. So that could be one of the strategies. अगर आपने कोई और notes नहीं बनाए हैं, that you can always revise those PYQs for your objective questions. But there are certain questions, especially I think in paper 2, which is common for all optionals, कि कुछ ना कुछ नया dimension वहाँ पे generally added रहता है. तो वहाँ पे depending on the demand of the question, I think वो आपको adjust करना पड़ेगा. And also मुझे लगता है कि कभी भी 2 answers cannot be exactly same. चाहे आप खुद भी वो 2 answers लिखेंगे, it is never possible कि आप same answers लिखेंगे. तो when you have basic points in hand, जो भी 4-5 points हैं, and if you try and use those, तो I think you are good to go. You can use them for your exam. देखिए, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो उसमें आंसर्स को लेके कि आप कितना सही डायरेक्शन में है, कितना नहीं है, तो आई थिंक इसके लिए टॉपर्स की कॉपीज बहुत ही दे कम इन हैंडी. दो कुछ टॉपर्स रहे हैं, जैसे नवनीत मन एक मैम है 2019 में, या यशनी नागराजन है, जिनको मैंने रेफर किया था उनकी कॉपीज को पढ़ने के लिए. तो उसके बाद आई टू केम अप विद माय ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो जब आप टेस्ट भी लगाते हैं, तो आप कई सारे टॉपर्स की कॉपीज को देखते हैं कि आपके उस आंसर में कम नंबर क्यों है, या किसी के उस आंसर में ज्यादा नंबर क्यों है. तो PSIR में कई बार डायलेमा रहता है कि आपने जब कोई आंसर लिखा, तो आपने कई सारे स्कॉलर्स को कोट किया है कि नहीं किया है. बट आई थिंक अब ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है यूपीएससी में, बिकॉज ये 2018 तक तो वर्क कर रही थी, 2019 से तो नहीं कर रही है, बिकॉज उसमें आपका ओरिजिनल एनालिसिस नहीं आ पाता है. तो मैं यही कहूंगा कि जब आप आंसर लिख रहे हैं, तो उसका एक ही टच स्टोन होता है, और वो ये होता है कि क्या आपने आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ जस्टिस किया है कि नहीं किया है. तो वो उस चीज को आप कैसे पहचानेंगे? उस चीज को आप ऐसे पहचानेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए इक्वालिटी पे क्वेश्चन है, तो आपने इक्वालिटी को पहले एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, या किसी ने इक्वालिटी पे क्या कहा है, या इंडिया में इक्वालिटी का क्या मतलब है, या उसमें अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, या इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, या हमें और इक्वालिटी के लिए आगे क्या करना चाहिए. तो या एब्सोल्यूट क्या होती है इक्वालिटी, या रिलेटिव इक्वालिटी क्या होती है. तो आपने एक चीज को हर तरीके से समझा दिया है. तो ये होना चाहिए कि जब एग्जामिनर उस आंसर को पढ़े, तो उसका पेट भर जाए, उसको ऐसा लगे कि यार मतलब इसने सब कुछ बता दिया, अब मुझे कुछ जानना ही नहीं इक्वालिटी के बारे में. तो ये एक तरीका होता है उसको करने का. दूसरा ये होता है कि जब आप टेस्ट लगाते हैं, तब आप कमियां पता लगती हैं आपको. तीसरा, आप टॉपर्स की कॉपीज देखते हैं. चौथा, पीयर रिव्यू होता है. ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको अपनी गलतियां बहुत कम दिखेंगी, बट दूसरों को आपकी गलतियां तुरंत पता लग जाती है. तो आप पीयर रिव्यू में जरूर जो है इन्वेस्ट करिए. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Certainly, this was the most detailed explanation on answer writing. It was very useful. Now, let's move ahead with our next question, which is from Burang. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good afternoon. As we have seen many times, we cover current affairs from 2-3 sources, but still, when we solve mocks, then we always find some topics which we had never listened. So, how to deal with current affairs and how to revise them? So I think for current affairs, first just answering a little bit of the background also, how much to refer. मेरे हिसाब से अब questions exactly current नहीं आ रहे हैं, it is more of contemporary. So at least refer to the current affairs magazines or newspapers, whatever you are following for 1.5 years. That is the most important thing. Secondly, current affairs prepare कैसे करना है, तो is that one newspaper you will have to follow throughout your preparation. It could be the Hindu or the Indian Express. I think these are the two most standard newspapers जो आपको follow करने चाहिए.
The second thing is also that when you're following the newspaper, I think मैंने ऐसा किया है, so it would be a good idea that you also follow one current affairs magazine of any reputed institute of your choice. Why is it important is because वहाँ पे there are a lot of area experts. तो जब आप newspapers पढ़ते हैं, especially for beginners, कभी-कभी मुश्किल हो जाता है समझना कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए. So if you're following a magazine, तो उससे थोड़ा सा एक idea streamline रहता है. And also that if you are not making notes of from your newspapers, just in case अगर आपको वहाँ पे problem हो रहा है, so you can always refer to the magazines. The what question that you asked specifically कि जब test में solve कर रहे हैं और कुछ current affairs के answers नहीं आ रहे हैं, so उसमें what I would want to say is देखो current affairs in itself is very vast, ठीक है, उसमें कुछ भी आ सकता है, unlike your static portions जहाँ पे syllabus एक हद तक define हो जाता है. So जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, व्हाट इज अ गुड आइडिया इज कि जो भी टॉपिक का आंसर आपको नहीं आया है, आप एक बार उसको गूगल सर्च करें, whatever the word it be it a name of a fungus, कोई अलग सा कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिल रहा है, एंड गूगल करते हुए टाइप द नेम एंड राइट द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. और अगर वो पर्टिकुलर चीज आपके न्यूज़पेपर में विद इन 1.5 years आई है, या फिर उसके बारे में किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने ट्वीट किया है, कहीं पे अपनी स्पीच में रेफर किया है एंड ऑल ऑफ दैट, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट और वो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा इन केस यू हैव मिस्ड इट इन योर मैगजीन्स और व्हाटएवर. अगर लगता है कि काफी ज्यादा पुराना है, बिकॉज अगर आप कोचिंग के टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो समटाइम जस्ट टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल वो थोड़े से फ्रिंज टॉपिक्स भी पूछ लेते हैं. सो यू कैन इग्नोर दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स, बट अगर वो न्यूज में है विद इन 1.5 years और 2 years का पीरियड, तो आई थिंक यू शुड नोट इट डाउन समवेयर, ईदर इन योर नोट्स, इन योर मैगजीन्स, वेरेवर यू फील लाइक. देखिए हाँ श्योर. और देखिए करंट अफेयर्स, ये जो एक डायलेमा है ना करंट अफेयर्स को लेके, ये हमेशा बना रहता है एस्पिरेंट्स के बीच में. तो जैसा दीक्षा ने कहा, ये बात सही है कि अब इतना करंट अफेयर्स का इतना वेटेज अब नहीं रहा है. और दूसरी चीज, करंट अफेयर्स इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, आप उसको कभी पकड़ नहीं पाएंगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको लिमिट कर दें. तो जैसे मैं भी 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ता था, अब इतना तो नहीं हो पाता है, तो आप एक तो जरूर पढ़िए, चाहे वो हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो. बिकॉज उससे होता ये है कि कोई टॉपिक अगर है, मान लीजिए अग्निपथ चल रहा है, ठीक है, न्यूज में, अब वो तो मैगजीन वाले तो बाद में इसका कंपाइलेशन निकाल के एक पेज में समझा देंगे, लेकिन फिर आपको वो इतना समझ में नहीं आएगा और एग्जाम से पहले आपको उसे रिवाइज करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा. और अगर वो चीज एग्जाम में याद नहीं आए तो वो क्वेश्चन गया आपका. लेकिन व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, तो एक हफ्ते तक लगातार अग्निपथ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव से एडिटोरियल्स आते रहेंगे और आप उन्हें पढ़ रहे हैं. तो उस चीज को लेके आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि अगर आप नहीं भी रिवाइज किए रहेंगे, आपको कोई नीड में भी पूछ लेगा तो आप चीजों को समझा देंगे. और जब वो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप उसके बारे में सब कुछ लिख देंगे. ठीक है. तो दूसरी चीज ये है कि जब न्यूज़पेपर हो गया, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप कोई एक ही सोर्स रेफर करिए, सिर्फ एक सोर्स. वो कोई भी मैगजीन हो सकती है, ठीक है, या जो लास्ट में कंपाइलेशन आता है आप उसको भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो आप उसी को पढ़िए. अब तीसरी चीज ये होती है कि जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे टैकल करें. तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं. पहला पॉइंट ये होता है कि जब आप टेस्ट सीरीज को लगाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको भी वहां पे टैकल करना सीख जाते हैं. और दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि देखिए इस एग्जाम में 50% पे टॉप हो जाता है, तो बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए करंट अफेयर्स का. बिकॉज जो सबसे ज्यादा करंट ओरिएंटेड पेपर है वो है GS3. और GS3 में आप देखिए टॉपर्स भी 80s और 90s में निपट चुके हैं. तो इसका मतलब सब लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तो जितना आप कर सकते हैं बस आप उतना करिए. उसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें GS3 में, जैसे ब्लू LED आ गया, वो सब नहीं पता होता इतना कि क्यों उसको नोबेल प्राइज मिल गया या क्या रहा. तो जो मन में आ रहा है आपने लिख दिया, ठीक है, बाद में उसमें नंबर आया ही नहीं है, वो सब बात की बातें होती हैं. तो रादर देन करंट अफेयर्स बहुत सारे पढ़ना या उनके पीछे भागना, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को टैकल करने का स्किल सीखें, कि आपको कुछ भी दे दिया जाए जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, और तब भी आप उसमें कुछ ना कुछ लिख के आ पाए. वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होता है मुझे लगता है. Yes, exactly. This is how one should approach the current affairs section, which is really very important if we see the current trend of the UPSC. Among those different questions that we have received, one question is, interviews hold an important role. So what all could be your advice for the aspirants about the interview preparation? So I think interview, yes, for me, I have had a decent enough score. I have a score of 193 this year. तो काफी हद तक वो एक रैंक मेरा लाने में हेल्प किया है. So what I would advise for interview is your interview whole journey starts when you are filling your DAF.
तो एक तो शुरू में जो आपने किया है प्रीलिम्स मेंस, तो मोर और लेस अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव द सेम बेस नॉलेज जो लोग भी इंटरव्यू के लिए क्लियर करे हैं। तो जब आप अपना डैफ फिल कर रहे हैं तो वन, बी वेरी केयरफुल विद वॉट एवर यू आर फिलिंग, क्योंकि जो मैंने शुरू में भी बोला, डू नॉट ब्लफ या फिर बहुत सारा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बाद में, बिकॉज इफ यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इट इज लाइकली कि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड इफ इट इज नॉट कमिंग नेचुरली टू यू तो वहां पे डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, आप लोग वहां पे चीजें झूठ बोलेंगे, एंड दोज पीपल आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर मेंबर्स जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उन्हें 2 मिनट नहीं लगेगा वो सब पकड़ने में। तो वन एडवाइस वुड बी कि जब भी डैफ फिल कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली फिल करना है जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं। स्पेशली यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो उत्कर्ष ने जो बिगनिंग में भी बोला दैट यू कैन इनकलकेट अ फ्यू हॉबीज, अपने आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें सो दैट यू हैव सर्टेन गुड पॉइंट्स और जो चीज आपने की है ताकि आप उनको एक्सप्लेन कर सकें। सेकेंड इज अबाउट रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि इंटरव्यू पार्ट में मोस्टली ज्यादातर करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू योर डैफ। तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए अगेन आई थिंक हियर यू शुड रेफर टू 2 न्यूज़पेपर्स और मोर में व्हाट आई वुड से इज सम पॉपुलर ऑनलाइन पोर्टल्स दैट वी हैव, तो वहां से आप न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं। आई वाज रेफरिंग टू द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज रोज का न्यूज़पेपर पढ़ के व्हाट आर 4 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर दैट डे उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी, एंड इफ देयर इज समथिंग जिसपे एक ओपिनियन फॉर्म करने की जरूरत है सो आई वुड जस्ट फॉर्म एन ओपिनियन देयर। अगर वो एडिटोरियल से बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो यू कैन रिसर्च अ लिटिल बिट मोर एंड रीड अ फ्यू मोर आर्टिकल्स। तो उस तरीके से जो भी कॉमन इश्यूज लाइक मोस्टली उस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर या फिर उससे रिलेटेड जो भी इन्फ्लेशन एंड अदर फैक्टर्स थे उन सब के बारे में जो भी चीजें थी उनका मैंने एक ओपिनियन बना लिया था। सेकेंड थिंग इज योर डैफ। तो डैफ में यू आर सपोज टू नो एवरीथिंग अबाउट योर डैफ, starting from the meaning of your name to the last point that you have written. तो जो भी लिखा है उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस, आई थिंक यहाँ पे टू अपीयर फॉर अ फ्यू मॉक इंटरव्यूज, बिकॉज वहां से आपको एक क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है कि आपके डैफ से रिलेटेड या आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को थ्रू योर मॉक इंटरव्यूज, एंड ऑल्सो दैट मॉक इंटरव्यूज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो एक अच्छा एडवांटेज रहता है। तो उन इंटरव्यूज में अपीयर करें, एंड एट टुडेज डे एंड एज सभी लोग वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू एंड यू कम बैक, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उन वीडियोस को एनालाइज करें, रादर देन जस्ट थिंकिंग कि हो गया इंटरव्यू, खत्म है, अब आज का पढ़ाई खत्म है। सो रादर देन डूइंग दैट, कम बैक एंड सी कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स आप ब्लफ तो नहीं कर रहे थे, आपके एक्सप्रेशंस कैसे थे, आपका एटीट्यूड किस तरीके का था, वर यू गेटिंग टू एंग्शियस, कहीं पे आप एजिटेट तो नहीं हो जा रहे थे अगर कुछ अजीब सा क्वेश्चन आ रहा है। तो उस तरीके की चीजों को प्रिपेयर करना, बिकॉज फॉर मी इट हैपेंड इन द बिगिनिंग, काफी खराब इंटरव्यूज जा रहे थे, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ एरियाज, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप एनालाइज करते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि कौन कौन से एरियाज पे काम करना है। सो आई थिंक दीज आर द 3-4 मेजर पॉइंटर्स जिन पे आपको अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए काम करना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू को लेके तो क्योंकि मेरा 160 अराउंड स्कोर रहा है और इंटरव्यू का पूरा सहयोग रहा है मेरा रैंक गिराने में, तो मैं बहुत ज्यादा इंटरव्यू को लेके नहीं बोलूंगा, बट आई ओनली ऐड टू व्हाट दीक्षा सेड। देखिए, सबसे जरूरी यही है कि आप ब्लफ मत करिए, बिकॉज आप ब्लफ नहीं करेंगे तो ये गारंटी है कि आप एटलीस्ट 150-160 तो जरूर स्कोर करेंगे, ये गारंटी है। और अगर आपने ब्लफ कर दिया तो आप कहीं 130 में ही मिलेंगे, उसके बाद आप कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर इंटेग्रिटी। देखिए, आपकी उम्र करीबन 24-25 साल होती है, वहां पे अगर आप एक इंसान की एवरेज एज 50 पकड़े तो वो 250 साल का कम्युलेटिव एक्सपीरियंस होता है उस इंटरव्यू बोर्ड के पास, तो आप उसको फूल नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। तो सबसे जरूरी मुझे लगता है इंटरव्यू में होता है ऑनेस्टी आपका, आप ऑनेस्ट रहिए। दूसरी चीज होता है कि जो आप प्रिपरेशन करते हैं, तो मैंने भी काफी प्रिपेयर किया था यार इंटरव्यू के लिए, मतलब बड़ी मेहनत की थी। हालांकि नंबर नहीं आया वो बात की बात है। तो आप क्या करिए, जैसे करंट अफेयर्स का एक सेक्शन हो गया, एक आपका ऑप्शनल का सेक्शन हो गया, जैसे मैं एवरनोट पे टॉपिक वाइज नोट्स बनाता था, ठीक है, एक मेरे उत्तर प्रदेश मेरा होम स्टेट है वहाँ का सेक्शन हो गया, मैंने एमपी में पढ़ाई की वहाँ का सेक्शन हो गया, मैंने तमिलनाडु में पढ़ाई की वहाँ का सेक्शन हो गया, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक सेक्शन हो गया, फिर जो कोचिंग में जब मैं रिव्यूज जो मुझे मिलते थे मॉक इंटरव्यूज में वो एक सेक्शन हो गया। तो वो सब आप पूरा उसको अच्छे से बनाइए, आप कुछ मॉक इंटरव्यूज भी लगाइए, डोंट ओवर डू देम, बिकॉज मैंने वो गलती की है। और सबसे जरूरी होता है कि आप जो टॉपर्स के इंटरव्यूज देखते हैं, जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, उसको भी आप देखिए, ठीक है। और जैसे कुछ लोग अगर आप उनसे कांटेक्ट कर सके, जैसे मेरे कांटेक्ट में 2 लोग थे हु हैव स्कोर्ड 200 प्लस अपने इंटरव्यूज में, तो आप उनसे पूछिए कि व्हाट वर्क फॉर देम, व्हाट डिड नॉट, ठीक है। कुछ कुछ चीजें होती हैं कि कई बार आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेबिलिटी देखा जाएगा इंटरव्यू में, तो आपको अपना ग्राउंड लूज नहीं करना है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, बन ही नहीं रहा है मुझसे,
तो उस समय आपके चेहरे पे वो शिकन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब अब आप जो है गेम ओवर हो रहा है आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितना भी गूगली हो, उसको आप जो है हैंडल करिए। मुझसे भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। तो देखिए, अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे इंटरव्यू में तो आप मान के चलिए आप एक एवरेज स्कोर तो जरूर लेके आ पाएंगे। और आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए, गाइडेंस अच्छा लीजिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं बस यही कहूंगा कि इंटरव्यू का बहुत ज्यादा लोड मत लीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, कई बार होता है कि लोगों को पता ही नहीं लग पाता है कि उनके इंटरव्यू में ज्यादा क्यों आए हैं या कम क्यों आए हैं। तो आप अपना बस बेस्ट देके आइए, उस दिन जो भी नसीब में होगा, जो आपका परफॉर्मेंस होगी। और ये चीज मैंने किसी से पूछा भी था, जैसे मेरे लगातार कम रहे हैं स्कोर, जैसे 157 160 थे, तो मैंने पूछा भी था एक सर से कि सर क्या मेरी पर्सनालिटी 160 की है? तो उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी पर्सनालिटी 160 की नहीं, तुम्हारा परफॉर्मेंस 160 वाला हो रहा है। तो आप कभी आपके इंटरव्यू में कम भी आ जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि आपकी पर्सनालिटी ही खराब है। ठीक है, कई लोग हैं जिनके, मैं पर्सनली किसी को जानता हूँ जिनके 140 थे अपने टाइम पे इंटरव्यू में, और वो आज बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर की तरीके से रिगार्ड किए जाते हैं। तो ये बस उस आधे घंटे का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई भी आपको आधे घंटे में नहीं जान सकता है, चाहे वो कैसा भी, कितना भी एक्सपीरियंस बोर्ड हो। हाँ, बट क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं आप एक अनुमान लगा सकते हैं, और वो कई बार सही अनुमान निकलता है, बिकॉज दिस प्रोसेस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस सेंचुरीज। यूपीएससी की एग्जाम आज से नहीं हो रही है, 200 250 साल से हो रही है। तो आप उस प्रोसेस पे भरोसा रखिएगा और प्रिपरेशन अपनी करके जाइए, और फिर थोड़ा तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा इंटरव्यू को लेकर। Truly, interviews are one of the most important part of UPSC CSE, and thank you for sharing such insights and your experiences and making us aware how to conduct ourselves during these interviews. Now, let's move ahead with our next question, which is from Amna, and it is actually very relevant in today's time and must be a very frequent question in every aspirant's mind. When was the time in your preparation when your patience was tested? How did you stay motivated? So I think if I were to tell about myself, सबसे ज़्यादा patience test हुआ था after I failed my second prelims, because उस टाइम पे आई थिंक मैंने जितनी मेहनत थर्ड अटेम्प्ट के लिए नहीं करी है उतनी मैंने सेकंड प्रीलिम्स के लिए करी थी, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट तो मजाक मजाक में ही निकल गया था कि इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उस पर इतना लोड नहीं था। बट सेकंड अटेम्प्ट में खुद के लिए भी एक प्रेशर था कि भाई अब तो एग्जाम क्लियर होना चाहिए। So I had done whatever was possible in my capacity in terms of hard work, in terms of reading resources, material, सब कुछ जो भी possible था वो किया। बट सडनली जब एग्जाम से बाहर आए और मार्क्स कैलकुलेट करे और ये पता चला कि ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट से भी कम आ रहे हैं फॉर सम रीजन डिस्पाइट वर्किंग सो हार्ड, सो दैट वाज द पॉइंट इन टाइम एंड आई डिसाइडेड कि शायद दिस एग्जाम इज नॉट मेंट फॉर मी, कि इसकी स्ट्रैटेजी समझना ही मेरे लिए मुश्किल है। And that is also when I started having double thoughts of quitting the preparation, going back to my postgraduate entrance and वहाँ के लिए prepare करना। But वहाँ पे भी unfortunately, और I don't know, maybe now fortunately, that वो एग्जाम भी डिले होता गया बिकॉज ऑफ कोविड। जो जनवरी में होना था वो अप्रैल शिफ्ट हुआ, फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, एंड दैट इज व्हेन आई गॉट बैक टू द यूपीएससी प्रिपरेशन। तो आई थिंक whenever you are demotivated, मुझे लगता है most important thing whether you want to quit the preparation or not is to analyze as to why did you fail in a particular stage, because जब मेरा प्रीलिम्स हुआ आफ्टर जितना भी रोना वोना था जो कुछ दिन का रहा, उसके बाद आई गॉट बैक टू द पॉइंट एज टू एनालाइज की गलती हुई कहाँ पे एग्जैक्टली, यू नो, कि जब इतना कुछ प्रिपेयर किया था तो वो आंसर बेसिक सब्जेक्ट्स के जो स्टैटिक थे वो मैं क्यों सही से नहीं मार्क कर पाई, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माय माइंड इन द एग्जाम हॉल, कि वो एंजाइटी नर्वसनेस इतनी ज्यादा क्यों थी, एंड इज इट पॉसिबल कि मैं ये सब चीजें करेक्ट कर सकती हूँ इन माय नेक्स्ट अटेम्प्ट और नॉट। तो आई थिंक वो एनालिसिस करना, एंड ऑल्सो टू सराउंड योरसेल्फ विद राइट काइंड ऑफ पीपल, दैट कुड बी योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेंबर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, कोई अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, और योर मेंटर्स दैट यू मीट इन द प्रिपरेशन। तो सराउंडिंग योरसेल्फ ओनली विद पॉजिटिव पीपल, बिकॉज जब आप फेल करते हैं तो लोग आप पे 10 कमियां ढूंढेंगे, दे विल टेल यू कि ऐसा नहीं किया, तुम ऐसे पढ़ती हो इसलिए गलत हो रहा है, ये नहीं करती इसलिए नहीं हो पाया। सो रादर देन फोकसिंग ऑन दैट नेगेटिविटी, जो भी आपको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं उन लोगों के टच में रहें और उस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करें। And I think this is how you should, and also it is important because you know failures do not always come only for this preparation, it is in life in general, कि जब भी आप कुछ चीज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में सक्सीड करेंगे। So always keep this thing in mind that you know it's not only for this time, you will have to have that patience in life in general
तो उस एटीट्यूड के साथ अगर आप रहेंगे तो आई थिंक इट विल हेल्प टू कोप अप दैट फेज ऑफ डिजेक्शन एंड डिमोटिवेशन जो आता है. सी कंटिन्यूइंग फ्रॉम व्हाट दीक्षा सेड, मेरे साथ भी ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही रहा है बिकॉज जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरा मतलब मकसद ही ये था कि बस प्री निकालना है, बट आई कुड रीच टिल इंटरव्यू स्टेज और फिर मेरा नहीं हुआ, तो मुझे सच में बहुत दुख तो नहीं हुआ था बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार इस एग्जाम में इंटरव्यू तक की पहली बार में पहुंच गई, ये अपने में एक अचीवमेंट है तो जाने दो. तो फिर जब स्कोर कार्ड आया तो आई एनालाइज फ्यू थिंग्स कि कहाँ कहाँ गलती है, ऑप्शनल में गलती है या क्या क्या दिक्कतें हैं, और फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ही ज्यादा मेहनत की, बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई की, और रिजल्ट के पहले ही मेरी बात भी हो रही थी एक रिलेटिव से, तो मैंने उनसे कहा कि यार आई थिंक आई एम इन द लिस्ट और आ जाना चाहिए नाम. और जब रिजल्ट आया तो फिर नाम नहीं था, और फिर आई ब्रोक डाउन, और वो होता है वही जो दीक्षा ने कहा, रोना धोना तो होता ही 2-3 दिन का, तो वो जरूरी भी है. ठीक है, तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब सब कुछ तो सही कर दिया, आप क्या कर सकते हैं. और उसके बाद फिर कुछ पर्सनल ट्रेजेडीज स्ट्रक की लाइफ में, तो इस अटेम्प्ट में तो मैंने मुश्किल से 1 महीने पढ़ाई की थी, सिर्फ दिसंबर का महीना मुझे मिला पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज नवंबर तक मैं इसी सब चीजों में घर के ही कुछ इश्यूज में बिजी था. बट आई थिंक जो आप आपने पहले साल मेहनत की, आपने दूसरे साल मेहनत की थी, वो कहीं ना कहीं, जैसे देखिए लाइफ में क्या होता है ना, लाइफ में एक पाप का घड़ा होता है, ठीक है, वो भरता रहता है, तो ऐसे लाइफ में ना एक मेहनत का भी घड़ा होता है, वो भी भरता रहता है. तो जब वो पूरी तरीके से भर जाता है तो आपकी सक्सेस निश्चित हो जाती है. और देखिए लाइफ में क्या होता है ना कि कुछ चीजों को समझने की जरूरत होती है कि जैसे अनुदीप दुरिशेट्टी सर कहते थे कि जिस साल आप डिजर्व करेंगे इस एग्जाम में, उस साल आपका हो जाएगा, जब आप तैयार हो जाएंगे इस प्रोसेस के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए. तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार अगर पहले अटेम्प्ट में हो जाते तो क्या पता इतनी मेच्योरिटी ना होती, या शायद थोड़ा हम लोग एरोगेंस में चले जाते कि यार हम ही सबसे बड़े तोप हैं, तो वैसा नहीं हो पाते हैं, मतलब दैट इज अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर. तो आप इस प्रोसेस में जब हैं तो आप कई सारी चीजें सीख रहे हैं. और देखिए यूपीएससी एक एग्जाम है और इसमें 6 अटेम्प्ट इसलिए दिए गए हैं ताकि आप गलतियों से सीखें. आज अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैंने अपने सक्सेस से क्या सीखा है, तो मैं 1-2 पॉइंट से ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने अपने 2 फेलियर से क्या सीखा है, तो मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स गिना सकता हूँ, और उन फेलियर्स की वजह से ही आज यहाँ पे हैं. तो बस यही होता है कि बहुत यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद द राइट काइंड ऑफ पीपल. ठीक है, क्योंकि जैसे दीक्षा ने भी कहा, जब नहीं होता है तो पीपल स्टार्ट डाउटिंग यू. यार मैंने तो अपने दोनों अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया है, उसके बाद भी मुझे ऐसा सुनने को मिलता था कि बेटा बैंक पीओ का फॉर्म भर दो, पीसीएस का फॉर्म भर दो, इसका फॉर्म भर दो, उसका फॉर्म भर दो. ठीक है, तो देखिए लोगों को आपकी मेहनत नहीं दिखाई देगी, उसको सिर्फ आपका रिजल्ट दिखाई देगा. इस बार भी अगर मेरा नहीं होता तो कोई ये नहीं दिखता कि यार 3 अटेम्प्ट में 3 इंटरव्यू दिया है. तो इसलिए ये जरूरी होता है कि आप सही लोगों के साथ आप बातचीत करें. तो मेरे भी जो मेंटर्स थे जो आज आईएएस में हैं, तो एक भैया थे, वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि उत्कर्ष, फॉर यू इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, कि ये कब होगा. और वो हमेशा पता नहीं क्यों ये बोलते थे कि उत्कर्ष फर्स्ट पेज में मैं तेरा नाम देखूंगा. और वो सही निकला. और जब मेरी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा यार देखो, मैं तो तुम्हारी रैंक देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ. तो आप जब ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी आएगी, और आप इन लोगों को देखते हैं कि इन लोगों ने खुद ने 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट लिए हैं, और आप इन लोगों को पर्सनली जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार अगर ये लोग यहाँ तक सस्टेन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं. तो सिर्फ जैसा दीक्षा ने भी कहा, सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, यूपीएससी में भी या लाइफ में भी कई बार समय की बातें होती हैं, कई बार समय खराब होता है, आप मेहनत ज्यादा करते हैं, या कई बार आपकी मेहनत में कमी होती है, तो आप अपने फेलियर्स को देखिए कि आप कहाँ जो है पीछे रह गए, और एक कम्युलेटिव एक मेहनत होती है, उसका एक इफेक्ट होता है जो फाइनली कल्मिनेट होता है रिजल्ट में. Yeah, indeed, failure is a pillar to success, and UPSC CSC is not just an examination. It's a journey, it's a process that teaches a lot of things: perseverance, hard work, patience, etc. Now, I would like to ask you another question. And before that, sir and ma'am, can we extend this session a bit more, at least 15 minutes? Yeah, if you- sure. Sure. Thank you so much. We have another question from the chat box. Is it compulsory to study NCERT from 6th to 12th standard, and making notes on this is relevant or not? So I have a very different opinion here, unlike a lot of people. For me, I think NCERTs, it is not important कि आप 6th से 12th तक का पढ़ें, because I did not do that personally. आप 11th 12th की NCERTs are good enough for a lot of subjects. वहां से पढ़ के काफी कुछ समझ आ जाता है. NCERTs also सारे subjects की पढ़ना इतना important नहीं है, because कुछ subjects में there are a lot of good standard books that are available. तो वो भी अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपका suffice कर जाएगा.
सम सब्जेक्ट्स दैट आई कैन मेंशन हियर जहाँ पे एनसीईआरटीज पढ़ना है, वन इज एंशिएंट एंड मिडिवल जो आपका पोर्शन है, उस पे जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो आपने एनसीईआरटी से कवर करना है। ज्योग्राफी में आई कैन से दैट 11th 12th इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर या फिर मिनरल्स वाले पोर्शन जो रहते हैं उस पे अगर चैलेंज आ रहा है तो आप 8th 9th 10th को भी रेफर कर सकते हैं। 6 to 8th आई डोंट नो इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे इतना चैलेंज नहीं आता था ज्योग्राफी में, सो आई नेवर रेड दोज पोर्शंस। So these are some of the areas जहाँ पे इनफैक्ट आई थिंक फॉर साइंस स्टूडेंट्स कुछ लोग जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है उनको थोड़ा सा बायोलॉजी वाले इश्यूज में अगर चैलेंज है, सी अगेन वहां पे भी डू नॉट गो इनटू रीडिंग की मैं केमिस्ट्री की या फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, बिकॉज कुछ उस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इफ यू डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड उस तरीके के क्वेश्चंस वो एनसीईआरटीज पढ़ के टैकल करना विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप बाकी एरियाज पे फोकस करें, आप अपना पॉलिटी हिस्ट्री उन सबको एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, रादर देन जस्ट गोइंग बिहाइंड कि मैं एनसीईआरटीज पढ़ लूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डू नॉट डू दैट। So I think this is what I followed mostly with regard to NCERTs कि selectively choose किया कि कौन कौन से areas में NCERTs पढ़ने की जरूरत है, and only those portions were the one जिसके लिए NCERTs को use किया। Secondly, to make notes or not, so I am not a notes person at all. मैंने तो कभी भी किसी चीज के लिए notes नहीं बनाए। Very rarely, I think I do not make notes, but what I do is to scribble things while I am studying. तो कुछ कुछ चीजें ऐसे ही रैंडम कोई भी कीवर्ड आई वुड जस्ट नोट इट डाउन, पढ़ते पढ़ते लिख लिया। एंड समटाइम्स उसको अगर कुछ चीज याद नहीं हो रही है, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज टियर दैट शीट ऑफ फ्रॉम द नोटबुक और उसको वॉल पे लगा लेती थी, एंड आई यूज्ड टू कीप रिवाइजिंग इट। और उस शीट पे जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कुछ मटेरियल होगा, इट कुड बी हिस्ट्री, इट कुड बी पॉलिटी, इट कुड बी ज्योग्राफी। तो उस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है, डिपेंडिंग कि आप, आई डोंट थिंक कि स्टैंडर्ड बुक्स या फिर एनसीईआरटीज के, तो एनसीईआरटीज प्रोबेबली अगर कोई बहुत 6 to 12 कर रहा है तो वो शायद नोट्स बना सकता है, बट स्टैंडर्ड बुक्स में तो आई डू नॉट थिंक कि नोट्स बनाने की इतनी ज्यादा जरूरत होती है। देखिए मैं ये कहूंगा कि जैसे अगर अभी आप कॉलेज में हैं, आपके पास समय है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए एनसीईआरटीज को। अगर आप ये कहते हैं कि आपका ग्रेजुएशन हो गया, अब आप तैयारी करने आए हैं, आपके पास 1 साल का समय है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, जीएस करना है, ऐसे करना है, ऑप्शनल करना है। तब मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, तब आप 11th 12th में काम चला सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग अगर कॉलेज में हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो आप लोग अभी एक एनसीईआरटी अगर समय है तो पढ़ लीजिए 6 to 12 तक की। बिकॉज मैंने भी कॉलेज में यही किया था, जब मैं थर्ड फोर्थ ईयर में था, तो फोर्थ ईयर में मैं ऐसे बैठे बैठे बस एनसीईआरटीज को अपने फोन में ई बुक डाउनलोड करके पढ़ लेता था। और नोट्स बनाना है कि नहीं, तो देखिए इस डायलेमा से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि बना लीजिए, ठीक है, तो वो डायलेमा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद उस नोट्स को आप कहीं रखिए, बिकॉज मैं इस मामले में दीक्षा का 180 डिग्री ऑपोजिट हूँ, और मैं नोट्स बना के ही करता हूँ, ठीक है। तो एक बार आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको कभी फिर उस किताब को रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो अगर आप जैसे आप नोट्स चाहें आप बनाएं या नहीं बनाएं, वो तो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने उसके नोट्स बना लिए, अब आपका बेसिक क्लियर हो गया है, अब आप कभी भी उस नोट्स को रेफर कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली दीक्षा ने बता दिए कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब की एनसीईआरटीज होती हैं, सारी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो सेलेक्टिवली पढ़िए, समय है तो सारी पढ़ लीजिए, नहीं समय है तो 11th 12th की पढ़िए। नोट्स बनाना चाहें तो बना लें, नहीं बनाना चाहे तो ना बनाएं। तो आई थिंक सब में इट विल वर्क, ऐसा कुछ देयर इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट इट। Choose selectively and smartly. That is one of the keys to crack such examinations. Now, my next question is from Sahil. Good afternoon, sir and ma'am. As economics is more dynamic in nature, so can you please tell about the sources you followed? So for economics, I think there are two sets जो होता है, एक होता है just static portion of economics और एक रहता है जो current related events होते हैं। So if I were to talk about my resources, तो for the static portion मैंने अनुपम सर के जो स्मार्ट वर्क लैब्स के जो क्लास नोट्स थे उनको रेफर किया था, because he teaches economics, so I use those notes. And for the current affairs मैंने विजन IS का जो मंथली मैगजीन्स आते हैं वो थ्रू आउट द ईयर फॉलो किया था। एंड बिफोर प्रीलिम्स और मेंस PT 365 एंड मेंस 365 जो आता है उसको रेफर किया था, एंड दैट इज हाउ आई प्रिपेयर्ड माय इकोनॉमिक्स। अगेन हियर इंपॉर्टेंट इज कि इकोनॉमिक्स के स्ट्रैटेजी, स्पेशली जब आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक वहां पे मोर इम्पोर्टेंट है कि आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो विद रिगार्ड टू फंडामेंटल डेफिनेशंस जो पूछे जाते हैं। तो वो आप कोई भी स्टैंडर्ड स्टैटिक सोर्स को यूज करके उसको कर सकते हैं। एंड सेकेंडली एक और चीज होता है द इकोनॉमिक सर्वे एंड द बजट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर।
तो यू शुड बी वेरी थरो विद दैट एज वेल कि उसमें क्या क्या डेटा पॉइंट्स दिए हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में स्पेशली उस पर डिस्कस किया गया है। बिकॉज इन प्रीलिम्स और इवन इन मेंस कई बार हो सकता है एक 10 मार्कर पूरा किसी पर्टिकुलर, जैसे इस बार वो वी शेप रिकवरी पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो समथिंग लाइक दैट विच इज डिस्कस्ड इन योर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, तो वो भी आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एंड मेंस के लिए अगेन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, तो किस तरीके से आप अपने इकोनॉमिक्स के आंसर को प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज इन पेपर 3 देयर आर लॉट ऑफ डायमेंशंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो अपने इकोनॉमिक्स के आंसर में कॉमन डेटा पॉइंट्स आप मैगजीन से या फिर न्यूज़पेपर से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वहां से विद रिगार्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट कितना रेट है, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, यू आर सपोज टू नो दोज बेसिक डेटा पॉइंट्स। एंड डू नॉट थिंक दैट एवरीबडी इज कोटिंग द सेम स्टैंडर्ड डेटा, तो मैं कोई नए डेटा के पीछे भागू। नो, दैट इज अ वेरी स्टैंडर्ड डेटा जो ऑथेंटिक सोर्सेज से आता है। तो वो डेटा को आप एक जगह पे कोलेट कर लें एंड यूज दैट डेटा व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स। सो दिस इज हाउ आई वेंट अबाउट विथ माय इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आई थिंक दीक्षा ने सब कुछ कवर कर दिया है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को समझिए। बिकॉज वंस आपको बेसिक समझ में आ गया, उसके बाद आपको उसका करंट को चाहे स्टार्टेड को सब समझ में आएगा। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको वो भी समझ में आएगा, आप जब इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ेंगे तो आपको वो भी समझ में आएगा। बिकॉज इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, जीएस में भी। तो जीएस में भी इकोनॉमिक्स के पर्टिकुलर क्वेश्चंस में मुझे लगता है आपको कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करने पड़ते हैं, जो भी फिस्कल डेफिसिट है या जो भी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है या जो भी टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, अर्थपीडिया और इन्वेस्टोपीडिया या विकासपीडिया, ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म्स को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। यूट्यूब पे मृणाल सर तो हैं ही, इज द डॉन ऑफ इकोनॉमिक्स इन यूपीएससी, तो उनके वीडियोस आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, आपके कुछ नोट्स हो सकते हैं, मेरे कोचिंग के नोट्स थे जो बेसिक्स, जो मेरा जो कोर नोट्स थे, ठीक है, उनको ऑब्वियसली आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ करते जाएंगे। और सबसे जरूरी यही है कि आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ेंगे तो आप उसमें इकोनॉमिक्स को लेके इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है, या उसके रिगार्डिंग बहुत सारे एडिटोरियल्स आते रहते हैं कि कैसे चीजों को हैंडल किया जाए, कैसे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, मनरेगा में क्या क्या इश्यूज हैं, हम वी शेप रिकवरी की तरफ है कि जेड शेप है कि डब्ल्यू शेप है, क्या है। तो उसके रिगार्डिंग, और इकोनॉमिक्स में आप कभी कभी अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए थोड़े बहुत ग्राफ्स को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ग्राफ प्रैक्टिस है कि इन्फ्लेशन का ट्रेंड कितना चल रहा है, कितने परसेंट पे है, या हमारी जो जीडीपी है कैसे ग्रो कर रही है, कैसे माइनस में जाके प्लस में जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड करेगा आपके आंसर्स में। तो आई थिंक इकोनॉमिक्स के लिए दीक्षा ने तो काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बताई दिया है। Yes, exactly. This is how economics can be approached for this exam. Uh, Rakshan Jandial, another attendee of this session, he has asked a question: is newspaper compulsory if I read analysis provided by coaching institutes or monthly magazines? See, I think because आप लोग अभी काफी early stage of preparation में हैं, so it is important that you read your newspapers. शुरू में हो सकता है फॉर बिगिनर्स की प्रॉब्लम हो थोड़ा सा एडिटोरियल्स को समझने में, द लैंग्वेज ऑफ द जो एडिटोरियल्स आते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं इन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। उसके लिए यू कैन ऑलवेज रेफर टू दीज एडिटोरियल का जो एनालिसिस एक वीडियो फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है, बट डू नॉट मेक इट अ हैबिट कि आप सिर्फ उसी को रेफर कर रहे हैं। इन द बिगिनिंग समझने के प्रोसेस में आप उसकी हेल्प ले सकते हैं एज टू हाउ टू अंडरस्टैंड या एनालाइज कैसे करना है। बट ग्रेजुअली आई थिंक 2 महीने 3 महीने के प्रोसेस में इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, तो एक हैंग आपका खुद का बनना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी न्यूज को एनालाइज कर रहे हैं। और उसके बाद आप चाहे नोट्स बनाएं या ना बनाएं, बट आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको खुद से धीरे धीरे समझ आना चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। रीडिंग मैगजीन्स यू कैन ऑलवेज सप्लीमेंट दैट विथ न्यूज़पेपर, बट मुझे लगता है कि जब ये अभी शुरू में भी उत्कर्ष ने डिस्क्राइब किया कि जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो अ पर्टिकुलर न्यूज इज फॉलोड फॉर अ वीक, फॉर 15 डेज। कई बार जैसे रशिया यूक्रेन वॉर तो इतना लंबा चला है कि ओवर मंथ्स वही चीज बार बार रिपीटेडली आ रही है। तो काफी सारी चीजें आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी में, आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होती जाती है व्हेन यू आर रीडिंग द सेम थिंग एवरी डे। तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको स्ट्रेंज नहीं लगेंगे। जैसे इस बार भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं दैट हु इनॉग्रेटेड अ पर्टिकुलर प्लेस और समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, यू हैव सीन द पिक्चर ऑफ द पर्सन इनॉग्रेटिंग, उस इवेंट के बारे में 3-4 दिन कवरेज रहा है, तो उस तरीके से वो ज्यादा बेटर याद रहता है कंपेयर टू जो आपने मैगजीन के एक ब्लैंक पेज। बिकॉज अगर आप मैगजीन देखोगे दे आर जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट्स जहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो समटाइम टू ग्रास्प दैट इन्फॉर्मेशन बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग। तो मैगजीन्स को एज अ सप्लीमेंट यूज करें, बट कीप रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फेज। न्यूज़पेपर्स आर कंपल्सरी, पीरियड।
Now, I would like to ask the last question of the session. Due to the paucity of time, we could not take more questions. We are very sorry for all those questions that left unanswered, but we hope to have more such sessions and get all those questions answered as well. The last question for the session is specifically, ma'am, आपने सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों से पढ़ा है, तो आपने दोनों तरीकों में क्या अंतर अनुभव किया, और जो अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं या जिन्होंने तैयारी कर रखी है, उन्हें आप क्या सुझाव देंगी, कौन सा माध्यम बेहतर है? So I think with regard to coaching in this exam, this is a very good medium where I want to clarify this issue कि it is not necessary कि आपको एक क्लासरूम प्रोग्राम या फिर एक फाउंडेशन प्रोग्राम की जरूरत हो टू प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जाम, क्योंकि जो बहुत सारा मटेरियल है या फिर रिसोर्सेज जो इस एग्जाम में यूज होते हैं वो बहुत स्टैंडर्ड तरीके से मार्केट में अवेलेबल है. रिसोर्सेज का गाइडेंस इन टुडेज टाइम स्पेशली आपको यूट्यूब से मिल जाएगा. यू हैव टेलीग्राम चैनल्स बीइंग रन बाय टॉपर्स जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, एंड बहुत सारे लोग बहुत अच्छा और एक्सटेंसिव हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं. So all that you can easily get. कुछ टॉपिक्स I have been saying this very often कि कई बार ऐसा होता है कि हम बुक्स पढ़ते हैं और शुरू में नहीं समझ आता है, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा. देयर विल बी सर्टेन एरियाज जो आपके वीक होंगे. अगर आप सपोज पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको पार्लियामेंट का चैप्टर उतना अच्छे से ना समझ आए, बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरी पॉलिटी की बुक में कुछ भी समझ नहीं आएगा. तो जो भी चीजें आपको नहीं समझ आती हैं उसके लिए आप चाहे तो यूट्यूब पे वीडियोस देख के, बिकॉज आजकल काफी सारा मटेरियल उस तरीके का अवेलेबल है, या फिर यू रीड इट अगेन एंड अगेन, तो थोड़ा सा उस तरीके का हेल्प आप ले सकते हैं. वेर आई थिंक कोचिंग का रोल आता है इज इन 2 places. वन with regard to your test series, more importantly for mains, prelims में तो काफी कुछ एनालिसिस आप खुद से भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव होता है यू कैन बाय द टेस्ट फ्रॉम द मार्केट एंड सॉल्व इट घर पे. बट मेंस में यू स्पेशली नीड अ फीडबैक जहाँ पे कोई आपके आंसर्स को रिव्यू करे, एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ये रहता है कि यू डू नॉट हैव एनी सीनियर या फिर एक जहाँ से आप हेल्प ले सकें, एज वाज द केस विथ मी. तो वहां पे आई थिंक आप लोगों को टेस्ट सीरीज के लिए कोचिंग काफी हेल्पफुल हो सकता है. एंड सेकेंडली वेयर कोचिंग इज हेल्पफुल इज टू प्रोवाइड यू विद द राइट काइंड ऑफ मेंटर, कि अगर जब आप आंसर्स लिखते हैं तो यू हैव दोज 1-to-1 फीडबैक सेशंस जहाँ पे आप जाके बात कर सके. बिकॉज जब आंसर लिख के आता है, सम कमेंट इज गिवन, कई बार नहीं समझ आता कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्पेसिफिकली फिट इन करनी है. सो दैट सॉर्ट ऑफ अ ह्यूमन इंटरैक्शन, बी इट थ्रू कॉल, वीडियो कॉल हो सकता है, नॉर्मल कॉल हो सकता है, या फिर 1-to-1 मीटिंग में. I think these are the two standard things जो आपको कोचिंग से डिमांड करना चाहिए, and that is what you should look for wherever you are joining. Apart from this, I think most important is कि आप चाहे कोचिंग जाएं या ना जाएं, your self study is irreplaceable. वो तो आपको करना ही पड़ेगा, and you will have to put in those number of hours जिसपे आप खुद को टाइम दें और खुद से अपनी प्रिपरेशन करें. That is the most important takeaway I would want to give from here. I think Diksha is right. Coaching करना नहीं करना is a question of choice. It is a means. Coaching is not an end to the UPSC preparation. Because जैसे मैं जानता हूँ, मेरी फ्रेंड है यहाँ पे इंदौर में ही है, उसने सेल्फ स्टडी की 1 साल में और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को 60 रैंक के साथ निकाल दिया. ठीक है, तो वो सिर्फ आपकी चॉइस है. मैं 2018 में ग्रेजुएट हुआ, मेरे पास समय था तो मैंने ले ली कोचिंग 1 साल. बट उसके बाद इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज कि आपने कोचिंग का यूज कैसे किया है, आपने उन मटेरियल्स का यूज कैसे किया है, और आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं. सबसे जरूरी वही होता है. ठीक है, बिकॉज अगर आप पूरी तरीके से कोचिंग पर रिलाई कर रहे हैं तो योर बोट इज गोइंग नोवेयर, यू आर स्टक इन बिटवीन. ठीक है, तो आप जैसे दीक्षा ने भी कहा, कोचिंग का रूल जब मेनली आता है वो जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो वहां पे गाइडेंस के लिए आता है, या पीयर रिव्यू के लिए आता है, या बाद में मॉक इंटरव्यूज के लिए आता है. तो वो सिर्फ सप्लीमेंट कर सकते हैं आपके प्रिपरेशन को. दे कैन नॉट फॉर्म योर प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन. वो आपकी अपनी मेहनत और सेल्फ स्टडी ही होती है. बिकॉज कोचिंग में भी जो पढ़ाते हैं उसको आप घर पे आके फिर खुद से ही पढ़ते हैं चीजों को समझने के लिए. तो कोचिंग का जो क्वेश्चन है, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस. आप चाहे तो करिए, नहीं चाहे तो मत करिए. नहीं भी करेंगे तो आज के टाइम में इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि आप खुद से भी कर सकते हैं. और आप लोग तो यार वैसे भी इतने अच्छे कॉलेज के यंग ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए खुद से करने में. इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन आंसर राउंड एंड करना चाहूंगी. मैं सर और मैम को इतने धैर्य के साथ क्वेरीज को आंसर करने का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. थैंक यू सर, थैंक यू मैम. अब मैं कमल जोशी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी, को वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए बुलाना चाहूंगी. Thank you, Vinti. Good afternoon, everyone. Myself, Kamal, Vice President of Kartavya.
On the behalf of Kartavya, I would like to extend my heartfelt gratitude to Utkarsh sir and Diksha ma'am for being with us despite their busy schedule. We are thankful to you for the valuable insights you shared. Further, I would like to thank you, our principal ma'am, Dr. Vibha Singh Chauhan, our convener sir, Dr. Vikram Singh Chaudhary, and other teachers, staff of the advisory committee. Thank you for being supportive for us. A huge thanks to the audience, without whom the session is incomplete, and thank you for being the keen listeners and participating with us. A huge thanks and congratulations to the organizing team for organizing such an amazing session. Thank you everyone and have a great day ahead. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So thank you, Kamal. And with this, we have come to the end of this session. And I'm quite sure of one thing, that our audience has had some great takeaways from this inspiring event today. And on this positive note, I would like to inform that our audience is free to leave the meeting. Thank you so much and have a nice day.